Morning students, how are you all? This is Pythagoras theorem chapter. Already we have done Pythagorean triplets, then theorem of geometric mean, and now the Apollonius theorem. The question will be depending on 2 marks and 3 marks and sometimes 4 marks. So let's have first a look on the Apollonius theorem. In a triangle ABC, if M is the midpoint of BC, then AB square plus AC square is equal to 2 times AM square plus 2 times BM square. Now let's have a look in the diagram. In a triangle ABC, if M is the midpoint of BC, then AB square plus AC square is equal to 2 times of AM square and 2 times of BM square. So we have to do construction such that segment AD is the median on MC. Now we will start with given. What is given in the diagram? In triangle ABC, M is the midpoint of side BC. What we have to prove? That AB square plus AC square is equal to 2 times of AM square plus 2 times of BM square. We have to do construction that I have already explained you. Draw seg AD perpendicular to seg BC such that B dash D dash C. Now in proof we can say if seg AM is not perpendicular to side BC, if seg AM is not perpendicular to side BC, we can say that AMB and angle AMC are either acute angle or obtuse angle. So according to the figure, we can say AMB is on obtuse angle and angle AMC is acute angle. Obtuse and acute. So from above we can see that AB square is equal to AM square plus MB square plus 2 times BM into MD. And for AC square we can say that AM square plus MC square minus 2 times of MC into MD. Now we can also see that from above that AC square can be converted into MB and BM. See how? We can say that AC square is equal to AM square plus MB square minus 2 times of BM into MD. We can convert this MC into BM
MC into BM. Why we can say this? We can say this because B dash M dash C. So here is the reason that BM is equal to MC. From above we can say that adding all we can say that AB square plus AC square is equal to 2 times of AM square plus 2 times of AB square, MB square, and it is proved. Once again, let's have a look. This is triangle ABC, where M is the midpoint of BC. We have to prove that AB square, AC square, जो दोनों बाहर के हिस्से हैं वो दोनों ऐड होंगे, जिसमें से 2 टाइम्स क्या मिलेगा हमको, AM और BM. ये हमको प्रूव करना है. हमने एक कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर ड्रॉ, जिसमें AD परपेंडिकुलर बन रहा है BC का. अगर हम AM को परपेंडिकुलर नहीं मानते हैं तो एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट बनाकर प्रूव कर सकते हैं. नीचे मैंने प्रूव करके बताया है यहाँ पर कि एक ऑब्ट्यूस है, एक एक्यूट है. इफ AB अगर मैं लेती हूं तो मेरे पास क्या चीजें अवेलेबल है, AM अवेलेबल है, MB अवेलेबल है, BM भी अवेलेबल है और MD भी अवेलेबल है. अगर मैं AC को लेती हूं तो मेरे पास क्या अवेलेबल है, AM अवेलेबल है, MC अवेलेबल है, फिर MC भी है और वापस MD भी है. जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर तो हम लोगों को ऐसे ही मिल जाता है. सिर्फ हमको इंटरचेंज करना है BM को MC से, ताकि हम उसको प्रूव कर सके. और यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स. क्वेश्चन पहले ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व मतलब देखो. क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्राइंगल है जो PQR है, राइट. पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR. इफ PQ इज 11, PR इज 17, PS इज 13, फाइंड QR. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं. हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे अपोलोनियस को, ऑलवेज स्टार्ट विथ गिवन. दिखाई क्या दे रहा है क्वेश्चन में, ट्राइंगल PQR है, PS इज द मीडियन. बाय अपोलोनियस थियरम PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर, PS स्क्वायर एंड QS स्क्वायर. ओके, वैल्यू पुट अप करना है. व्हाट इज PQ स्क्वायर, 11. व्हाट इज PR स्क्वायर, 17. 2 टाइम्स ऑफ PS. हाँ, PS वी नो दैट इट इज 13 एंड QS वी डोंट नो. दोनों को कॉमन लेंगे क्योंकि 2 टाइम्स कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर. 11 इज 121, 17 is 289, 2, 13 जा 169 प्लस QS स्क्वायर. दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, 410. देन दिस इज 2, दिस इज 169 प्लस QS स्क्वायर. 410 को 2 डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे. बाहर हमारे पास 169 प्लस QS स्क्वायर है. 2 डिवाइड बाय 410 is 205 and this is 169 plus QS स्क्वायर. नेक्स्ट इज QS स्क्वायर को ढूंढने के लिए ये हम यहाँ पर पोजीशन चेंज करते हैं, वो माइनस होगा और आंसर आएगा 36. हमें QS स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ QS चाहिए. तो 36 को रूट में डालेंगे एंड QS की वैल्यू आएगी हाउ मच, 6. अब हमको QS मिल गया है 6. ढूंढना क्या है स्टूडेंट्स, QR. हाउ यू विल फाइंड QR? See, QR is the double of QS.
QR is the double of QS. So QR is equal to 2 times of QS. Then QS is 6. So 6 2s are 12 centimeter. So the value of QR is 2 centimeter, or else you can write units. So we prefer units in Apollonius theorem. What is the answer? 12 units. Once again 2 marks क्वेश्चन, PS दिया है, अपोलोनियस से प्रूफ करना है, क्वेश्चन मैंने लिखा है, वैल्यू पुटअप करना है और उसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हुए आना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. समटाइम्स स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें कुछ चीजें आपको रेडीमेड दी हुई होगी. रेडीमेड यानी कि ट्राइंगल ABC है, पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट है BC का. हमको AB और AC रेडीमेड दिया है. अपोलोनियस थ्योरम में ये दो चीजें लास्ट क्वेश्चन में अलग अलग थी. अब हमको मर्ज करके इसकी वैल्यू दी गई है. क्या वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू है 290. क्वेश्चन में दिया है AB और AC 290 है. देखिए आपने. अच्छा, नाउ 2, व्हाट इज AM इन द क्वेश्चन? 8. सो 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर. 2 टाइम्स यहाँ नहीं लिखना है, मैंने जानबूझ के लिख के उसको कट किया है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है. जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको लिख कर कट किया है. सो 290 वैसे ही रहेगा. 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 इंटू 8 इज 64. सो 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस BM स्क्वायर. अगेन 290 का ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर पे आएगा. ये 290 का 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा. 64 को हम कुछ नहीं करेंगे. 2 डिवाइड बाय 290 इज 145. 64 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके माइनस होगा. 145 में से 64 माइनस होगा तो 81 आएगा. वापस हम लोगों को BM स्क्वायर नहीं चाहिए, वी वांट ओनली BM. सो देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 81, दैट इज इक्वल टू 9. एंड व्हाट वी विल राइट? यूनिट्स. नाउ वी नो BM इज डबल ऑफ BC का हाफ भी हो सकता है और डबल भी. तो BM इज 2 टाइम BM इज BC. सो 2 इंटू 9 18 यूनिट्स. सेम क्वेश्चन है, इजी हो गया था. दो चीजें पहले ही हमको क्वेश्चन में दी गई थी जिसको हमने ऐड करने की जरूरत ही नहीं बताई. 290 था, यहाँ पर जो था इसकी वैल्यू 8 थी. यहाँ पर मैंने जानबूझ के कट किया है बिकॉज ये 2 और ये 2 मैंने कॉमन ले लिया है. नाउ 290, 2 इंटू 8 8 84. 2 डिनोमिनेटर में आएगा. 64 सॉरी BM स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर ऑफ 81 9. BM 9, BC is double. 2 9s are 18. Your answer. Now third type of question, and after this the exercise is getting over and your chapter will be finished. This is little bit different question. Let's have a look, but it is very easy. In triangle ABC, sec AP is the median. If BC is 18, AB square and AC square is 260. Find AP. Here we have to find this. हम हमेशा डिनोमिनेटर्स की मेहनत करते थे, अब हमको ऊपर जो है मीडियन को फाइंड करना है स्टूडेंट. तो वी नो दैट BC इज 18. BC इज 18. तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो BP कितना मिल जाएगा, हमको ये पहले सर्च करना है. ठीक है, तो BP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. व्हाट इज BC? 18. सो योर आंसर इज 9 यूनिट्स. BP कितना मिल गया आपको? 9.
In triangle ABC, seg AP is median, Apollonius theorem. AB square AC square ready-made है students 260. 2 times of BP, इसलिए हमने पहले ही हाफ किया है क्योंकि हमें BP चाहिए था, तो हाफ कितना मिल गया था हम लोगों को 9. आपको AP ढूंढना है. AP स्क्वायर 260 इज इक्वल्स टू 2, 9 9 जा 81. AP स्क्वायर 260 is equals to 2 into 81 plus AP square. Now this 2 will come here and 81 plus AP square. इसको डिवाइड करेंगे हम, कितना आ गया 130 आ गया, माइनस 81 is AP square. Therefore AP is equals to root of 130 में से 81 गया, so हमारे पास 49 है. So 49 का स्क्वायर रूट इज 7 यूनिट्स. अगेन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, मीडियन पूछा था, इसलिए पहले हमने हाफ किया एंड वी गॉट द आंसर एंड देन सेम अपोलोनियस थ्योरम. आई होप दिस 3 क्वेश्चंस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. सो आई हैव गिवन वन होमवर्क टू यू ऑल. ट्राई टू सॉल्व दिस. जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू. In triangle ABC, AB is given, AC is given and BC is given. You have to find the median. Same way, look at the above question. ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इसमें भी मीडियन आपको पूछा है and this questions comes in the exams for 3 marks. So I hope you have understood it. Try to practice this so that it becomes easy for your examination and it is coming also. Very important question. Try to solve and pass to your friends also if you want. Have a good day. Thank you.